Yes, welcome all of you in Gyan Vidya channel. से श्री सूर्यमल कापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय दशमगढ़ में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, शास्त्री थर्ड ईयर poem The Last Decade. I think this poem is very important, very important. बच्चों, शास्त्री फर्स्ट ईयर के अंदर शेक्सपियर की पोएम है और शास्त्री सेकंड ईयर के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है और शास्त्री थर्ड ईयर के अंदर रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम है। लास्ट डेकेड, वेरी सिग्निफिकेंट एंड इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। माय लास्ट डेकेड, द टाइटल इज वेरी एप्रोप्रिएट, द लास्ट डेकेड एंड माय लास्ट डेकेड। माय वर्ड सोल्स पोटेंशियल, उसका अधिकार है, एक अहंकार ईगो का ये सिंबल है माई शब्द, है ना। माई लास्ट डेकेड, रॉबर्ट ब्राउनिंग, first at all we should know who is Robert Browning. I think there is only a poem which is prescribed in your course, in your circulation curriculum by Robert Browning poem. First at all, when was Robert Browning born? Robert Browning was born in 7 May 1812. इनका जन्म 7 मई 1812 को हुआ था and he was expired and died in 1889. I think he was only for 77 years old person. Robert Browning father had a rich collection. His father had a rich collection of rare books. His father was fond of to read the rare books. बहुत ही दुर्लभ पुस्तकें पढ़ने के लिए बहुत शौकीन थे and he had rich collection of rare books and his mother had deep religious conviction and religious study. His mother was a religious study and his father had a rare book. तो उनको एक ये विरासत के अंदर बच्चों मिली थी टैलेंटेड, उसको टैलेंटेड जीनियस है ना, वो एक विरासत में मिली थी प्रतिभा, जो पोएटिक टैलेंटेड है वो उनको विरासत में लिखी थी। When his father and mother means they thought he was a really a genius person, so he encouraged him for his genius talent. He encouraged him, उन्होंने उसका उत्साह बढ़ाया and he was much influenced by Byron and Shelley. Byron and Shelley की इसने कविताओं का अध्ययन किया बच्चों and he was a, we can say that he was a major Victorian poet in English literature. He is a major Victorian poet in English literature. Major Victorian poet in English literature. फर्स्ट ईयर के अंदर एलिजाबेथन काल है, सेकंड ईयर के अंदर ये ब्यूटी वाले विलियम वर्ड्सवर्थ का है ना, रोमांटिक एंड प्री रोमांटिक एंड फर्स्ट थर्ड ईयर विक्टोरियन एज. फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, which is divided into 3 sessions. In the first session, first year, there is only a Elizabethan age and second year romantic age and third year Victorian age. So we can say he was a great living poet of major Victorian poet. Okay, and he was much influenced by Byron and Shelley. And he is known for intellectual vigor and psychological study of human nature. He is known for intellectual vigor and psychological study of human nature. And he got married Elizabethan Barrett in 1845. He got married Elizabethan Barrett and they went away from Rome and Italy for a long time after marriage life. And when his wife Elizabethan Barrett expired and he came back to England and he was living in
London, and he published many poems and works which is very popular in English literature. I am telling you some Men and Women 1864, The Ring and the Ice, Ring and the Book, and the Dramatic Lyrics, which collection are very popular in English literature. And my last research point, which is published and appeared in 1842. इन दिस पॉइंट बच्चों मैंने इंट्रोडक्शन टू द पॉइंट आपको बता दिया है। रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में बताया था। रॉबर्ट ब्राउनिंग का जन्म कब हुआ था? 1812 को हुआ था एंड ही डाइड इन 1889। ही वाज 77 इयर्स ओल्ड पोएट इन इंग्लिश लिटरेचर। ही इज नोन एज ए विक्टोरियन पोएट इन इंग्लिश लिटरेचर। ही वाज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय वायरन एंड शेली। His mother was a religious lady and his father had a genius talented and he had a rare books, दुर्लभ किताबें रखते थे and we can say that he composed this poem, The Last Message, which published and appeared in 1842. ये 1842 के अंदर ये कविता प्रकाशित हुई थी, which is very popular poem. We can say that it is a great dramatic monologue. Dramatic monologue बच्चों रॉबर्ट ब्राउनिंग का जो dramatic monologue के रूप में जाना जाता है वो यही poem है, dramatic monologue. अब it is a kind a figure of speech dramatic monologue. In the dramatic monologue, a speaker speaks and who is listener we cannot say in the end of the poem, but speaker and listener both are projected on the stage. Similarly, a soliloquy, William Shakespeare's soliloquy Hamlet, which is very popular in English literature. Hamlet soliloquy. What is the difference between the soliloquy and the dramatic monologue? In the dramatic monologue, the speaker and listener both are projected on the stage. In the soliloquy, the speaker speaks, but the listener cannot understand what he is speaking. बच्चों soliloquy में क्या करता है? अपने से कथन होता है, व्यक्ति अपने आप खुद से कहता रहता है और dramatic monologue में स्पीकर बोलता है तो लिसनर उसमें सुनने वाला है। तो in this poem, at this point is written in the Iambic pentameter and there are mostly characters in this story. The whole story revolves around the Duke of Ferrara, who is the Italian Duke of the Renaissance period. He is the Italian Duke of the Renaissance period and he wanted to marry with the king and crown daughter. A messenger and envoy and ambassador came to him and he showed his dignity and his undemocratic and his suspicious nature in this point. He is a very suspicious nature. He is a democratic, hypocritic character. ये बहुत दिखाता है बच्चों और ये डोरी का कहता है मैं लालची नहीं हूँ, लेकिन जब इस पोइम को पूरा जब अपन पढ़ते हैं तो उसमें इसके जो कैरेक्टर की जो वीकनेस है वो रॉबर्ट ब्राउनिंग क्या करता है? एक्सपोजेस करता है। तो फर्स्ट वाइफ विच नेम वाज आई थिंक ल्यूक्रेजिया। His first wife which name was Lucrezia and second wife which name was a Barbara. The first wife which name was whose name was Lucrezia, who was expired now, and he assassinated secretly because Lucrezia wife Duke ordered his guard to kill her because Lucrezia was a very kind and gentle lady. तो वो बहुत ही सज्जन महिला थी बच्चों और सज्जन महिला होने के कारण एक राजा के दरबार में अगर सीधी सादी महिला आ जाती है तो राजा अपनी डिग्निटी को क्या कहता है? वो कमजोर समझता है। वो सोचता है कि ये मेरे डिग्निटी के अगेंस्ट में है। तो इस ड्यूक ने क्या किया था? उस ल्यूक्रेजिया जो उसकी फर्स्ट बिलव थी उसको सीक्रेटली उसने क्या करा दिया था?
marriage, which name was Barbara. Who is Barbara? Is the daughter of Count, and the Count sent a messenger to the Duke for his marriage, and the messenger came there for Barbara marriage. अब बारबरा की शादी के लिए ड्यूक के पास आता है, एंड ड्यूक शोज हिज ओल्ड beloved Lucrezia with picture in hanging on the wall. वो एक गैलरी में ले जाता है जहां पर अपनी पुरानी जो प्रेमिका है उसका नाम ल्यूक्रेजिया है, वो तस्वीर लटक रही है. दिस पिक्चर वॉज प्रिपेयर्ड बाय फ्रा पेंटालॉग. और बच्चों वो जो तस्वीर बनाई गई थी वो फ्रा पेंटालॉग के द्वारा बनाई गई थी. और फ्रा पेंटालॉग वेरी जीनियस आर्टिस्ट, बहुत ही जीनियस आर्टिस्ट था जिसके द्वारा बनाई गई थी. कोई भी उस व्यक्ति के ऊपर शक नहीं कर सकता था. तो उस पिक्चर को जब देखता है कौन? मैसेंजर. तो मैसेंजर या एल्बो या कह सकते हो एम्बेसडर जब उसकी तस्वीर को देखता है मच इंप्रेस, बहुत इंप्रेस होता है. लेकिन वो कहता है ये तस्वीर मैंने इसलिए मेरी पत्नी बन गई थी क्योंकि उसका कत्ल हो गया था, क्योंकि वह एक इस प्रकार की हार्टेड थी, काइंड हार्टेड होने के कारण उसका मैंने क्या करवा दिया, कत्ल करवा. इसी प्रकार सिमिलरली अगर सेकंड वाइफ जो बारबरा है, जो काउंट की बेटी है, वो भी इस प्रकार का अगर ट्रीट करेगी तो हो सकता है उसकी भी सेम कंडीशन यही हो जो पहली पत्नी थी. फिर वो नेपच्यून की बनी हुई जो मूर्तियां है, आर्किटेक्चर है, जो इन ग्रुप के द्वारा बनाई गई है, कहानी में बताई गई, पोएम के अंदर बताया गया है, जो इन ग्रुप के द्वारा बनाई गई है. इन ग्रुप आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए क्या था, बहुत ही फेमस. और वो आर्किटेक्चर बहुत ही रेयर पिक्चर थी, दुर्लभ तस्वीरें थी जो ड्यूक के पास तो मिल गई. ऐसे हर किसी के पास ऐसी रेयर पिक्चर तस्वीरें नहीं मिल सकती. ऐसी आर्ट कला है, आर्किटेक्चर है, वो बहुत ही दुर्लभ होती है. तो उसने वो एल्बम को या एम्बेसडर को या मैसेंजर को वो भी दिखाई आर्ट गैलरी में ले जाकर. तो कहने का मतलब फिर वो कहता है कि आई डू नॉट लाइक, मैं पसंद नहीं करता, आई डू नॉट लाइक द एनी डोरी, कोई दहेज नहीं पसंद करता. इफ एनीवन वांट, अगर कोई चाहता है तो गिव मी, देना चाहता है, ठीक है वो कर सकता है. अगर कोई दहेज देना चाहे तो उसके कैरेक्टर के अंदर वीकनेस भी है, हिपोक्रेटिक नेचर इसके अंदर दिखाया गया है, भाव दिखाया गया है. वो कोई चीज अपन जब नहीं चाहती है तब भी तो किसी दूसरे व्यक्ति से ये कहे कि भाई मेरे को ये चीज की आवश्यकता नहीं है, ऐसे मेरे पास है. तो इसका मतलब उसका जो ग्रीडी नेचर है वो इस पॉइंट के अंदर क्या किया गया है, एक्सपोजिट किया गया है. जो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ओपनली होकर इस कविता के माध्यम से जो ड्यूक कैरेक्टर है उसके माध्यम से पूरी पोइम में ये बताया गया है कि उसका नेचर कैसा है. तो बच्चों इस कहानी का केवल कंक्लूजन यही है, मैसेंजर जो काउंट की जो लड़की है उसका मैरिज प्रपोजल लेकर ड्यूक के पास आता है और ड्यूक उसको अपने घर के अंदर पूरा अपने घर की जो कंडीशन है उसको शो करता है, अपने डिग्निटी को, अपने सस्पिशियस नेचर को, अपने ग्रीडी नेचर को पूरा का पूरा रॉबर्ट ब्राउनिंग ड्यूक का एक्सपोजिट करके इस पॉइंट के ऊपर दिखाया है. तो इस पॉइंट के अंदर वेरी सिंपल पॉइंट एंड वेरी रिटन इन मेजर विक्टोरियन पॉइंट. रॉबर्ट ब्राउनिंग जो मेजर विक्टोरियन पॉइंट है रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा इसके द्वारा कंपोज किया गया है. इसके राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्यूक. आई एम टेलिंग यू सम पॉइंट, यू शुड राइट इट. आपको लिखना भी चाहिए दोस्तों. फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू द ड्यूक. We can say that the first point may be introduction to the Robert Browning. First, we should tell about the introduction to the poet Robert Browning. Robert Browning के बारे में बताइए, उसकी जो करेक्शन है उसके बारे में बताइएगा, कि फादर एंड मदर के बारे में बताइएगा. जो एलिजाबेथ जो उसकी पत्नी थी वो एक्सपायर होने के बाद वो लंदन में आ गया और रोम में इटली में काफी वर्ष रहा. फिर उसके बाद वो इंग्लैंड के अंदर लंदन में रहने लगा. फिर वो एक्सपायर हो गया. ये इंट्रोडक्शन टू द पोएट हो जाएगा. एंड सेकंड पॉइंट इंट्रोडक्शन टू द ड्यूक. थर्ड हिज प्राइड. एंड थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट द अनडेमोक्रेटिक टेम्परमेंट
And next 5 point, his hypocrisy. And next point, his love and a patronage of art. And next point, his suspicious nature. And next point, he is a cruel person and tyrant and egoistic. और वो एक अपनी अहंकारी प्रवृत्ति का भी था and confused. There are 10 points which I have told जिन्हें मैं बताता हूँ in this passage. Okay, and write a critical appreciation of Robert Browning poem My Last Passage. इसके ऊपर आप लिखिएगा, उसके ऊपर इंट्रोडक्शन में लिखिएगा, पोएट का भी लिखिएगा, ड्रामेटिक मोनोलॉग के ऊपर लिखिएगा, सोलोकी के ऊपर लिखिएगा और इसके अंदर जो इमेजरी का उपयोग किया गया उसके ऊपर लिखिएगा एंड वीकनेस ऑफ द ड्यूक कैरेक्टर है उसके ऊपर लिखिएगा, है ना, एंड इन द एंड कंक्लूजन. तो इट इज ए वेरी सिंपल पॉइंट व्हिच आई हैव टोल्ड यू इन दिस क्लास. कीप प्रैक्टिस इट. बच्चों, इफ यू फील एनी प्रॉब्लम, अगर आप कोई भी कठिनाइयां महसूस करते हैं, यू कैन आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हो और इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा. श्योरली आई विल टेल यू प्रॉब्लम. मैं आपको समस्या है उसको बताऊंगा. ओके.